Hello students, myself Dr. Vandana Pandey. I am from Department of Commerce, Shri Murli Manohar Town PG College, Balia. Today I am going to start my channel on YouTube and I am going to elaborate the subject of economic environment. And in the first lecture, I will focus on the meaning of the business, their concept and characteristics of business. So let's proceed. First of all, we have to know about that what is the meaning of the business and what is the meaning of the term environment. So for this purpose, we start with the term of the business. What is the business? We can explain the term of the business in different senses. In the broad sense, the business term embraces the whole business system or those activities, or we can say in some other words, the commercial activities which aimed at making of the profits, or an organization which is totally formed to make the profit. In a business, the activities which are totally based on to earn the profit is concerned with the business activities or the commercial activities. यदि व्यवसाय को हम एक शब्द देना चाहें या व्यवसाय को हम अर्थ देना चाहें तो ये कहा जा सकता है कि व्यवसाय में उन सभी वाणिज्यिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिन्हें लाभ के उद्देश्य से बनाया गया हो या जिन्हें लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा हो। इस प्रकार से यदि व्यवसाय का हम आशय समझना चाहते हैं तो इसमें हम उन सभी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियों या व्यापारिक गतिविधियों को लेंगे जिनसे कोई व्यक्ति या कोई संस्था लाभ को अर्जित करती है। व्यवसाय को बृहद विचारधारा के रूप में परिभाषित किया जाए तो कहा जा सकता है कि व्यवसाय जो है वो व्यावसायिक प्रक्रिया है। इस व्यावसायिक प्रक्रिया में वस्तुओं को बनाना, सेवाओं को इसके साथ साथ में इनका बाजारीकरण करना या इन्हें बाजार में बेचना और इसके बदले में लाभ को पाना होता है। We also focus on the characteristics of the business. The first character of the business is sell transfer or the exchange for the satisfaction of human needs. Now we start with the characteristics of the business. The first characteristics is the sales or the transfer or the exchange of the goods or services for the satisfaction of the human needs. In a business, generally goods or the services are transferred for the profit motive. Then we never include the barter system under the business because under the barter system only goods are exchanged and anybody who are giving or who are receiving the goods, we never give the name of the vendor or the purchaser. So in this situation, only the sales of the goods and services only included in the business, because the first motive of the business to get the profit. And the second is business is always dealing in the goods and the services. The third point is the all business starts or the operate with the motive to earn the profit,
and the third is the risk and the uncertainty is also the part of the business. Then we come to the point, the concept of the business. In the old era, the concept is totally based on the profit motive. पुराने समय में यदि कहा जाए तो व्यवसाय का जो एक उद्देश्य हुआ करता था वह सिर्फ और सिर्फ होता था लाभ को कमाना. बट इन द मॉडर्न कंसेप्ट, इन द मॉडर्न इरा, द कंसेप्ट इज टोटली हैज बीन चेंज्ड. आपका जो ये आपकी अवधारणा है या आपकी जो सोच है व्यवसाय के प्रति, इट हैज बीन टोटली चेंज. ये पूरी तरह से बदल चुकी है. नाउ द ऑल बिजनेसमैन स्टार्ट अ बिजनेस with profit motive as well as social responsibility. आप कह सकते हैं कि आज के समय में यदि कोई भी व्यवसायी किसी भी बिजनेस को कर रहा है तो उसके पीछे उसका मोटिव सिर्फ लाभ को कमाना ही नहीं होता है, वो सामाजिक उत्तरदायित्व को भी वहन करता है कि वस्तुओं का जो निर्माण कर रहा है या जिन पर्टिकुलरली सर्विसेज को वो प्रोवाइड कर रहा है वो हार्म ना हो, वो कहीं से भी किसी को नुकसान ना पहुंचाती हो. कहीं ऐसा ना हो कि वस्तुओं को जो बना रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या जिन सुविधाओं को वो दे रहा है, जिन सेवाओं को वो दे रहा है, उसमें यदि सिर्फ यदि वो एक लाभ के उद्देश्य से करता है, एक प्रॉफिट मोटिव से करता है, तो हम उस कंसेप्ट को अपने प्रेजेंट एरा में नहीं मान सकते. क्योंकि आज तो सरकारें भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को ला रही हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व के कंसेप्ट को ला रही हैं कि एक बिजनेसमैन का कंसेप्ट, एक बिजनेसमैन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सोसाइटी के लिए भी होनी चाहिए, कस्टमर्स के लिए भी होनी चाहिए, सप्लायर्स के लिए भी होनी चाहिए, इवन देन गवर्नमेंट के लिए भी होनी चाहिए. फॉर द एग्जाम्पल, कस्टमर गुड्स हार्मफुल ना हो, गुड्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी आपने प्रोडक्ट को चूज़ किया है, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस आपकी प्रोडक्ट पे होनी चाहिए. इट मीन्स ऑन द पैकेजिंग. यदि आप उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं तो आप गुड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस को लिखते हैं. देन फॉर द सप्लायर्स, जिन सप्लायर्स से वो गुड्स को ले रहा है, वो जो उसके सप्लायर्स हैं वो उसको किस तरह का गुड्स दे रहे हैं, किस तरह का रॉ मटेरियल दे रहे हैं, वो रॉ मटेरियल भी सही होना चाहिए. क्योंकि उसी रॉ मटेरियल से वो अपने बिजनेस में किसी भी प्रोडक्ट को बनाना शुरू करेगा. इसके साथ में यदि हम कहते हैं क्रेडिटर्स को ले लीजिए या उसके डेटर्स को ले लीजिए, तो उसके लिए भी उसके उत्तरदायित्व बनते हैं. द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने जो रूल्स अप्लाई किए हैं, जो रेगुलेशंस लगाए हैं या जो सरकार के एक नियम कानून हैं, उनको ऑल दे शुड बी फॉलोड बाय द बिजनेसमैन. बिजनेसमैन को उनको फॉलो करना ही चाहिए, करना ही होगा. बिकॉज फॉर द एग्जाम्पल, जस्ट पेइंग द टैक्सेस, करों का भुगतान करना, उसके साथ में हम लोग जैसे कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन, कर की चोरी, कर का भुगतान न करना, इस तरह की चीज़ों के प्रति सरकार अब कहती है कि आप यदि किसी व्यवसाय को चला रहे हैं, इफ़ यू आर ऑपरेटिंग एन अ बिजनेस, तो यू विल पे द ऑल टैक्सेस रेगुलरली, no tax evasion, no avoidance of the taxes. So, we conclude the concept of the business. First of all, in the old era, the concept of profit, only the profit maximization is converted into profit cum service. एक कंसेप्ट आया हुआ है, एक नई अवधारणा आई है जिसमें सिर्फ हम अपने लाभ को अधिकतम ही नहीं करते हैं, बल्कि हम लाभ के साथ साथ सेवाओं का भी ध्यान रखते हैं. To present the concept of the profit through services is very popular and widely accepted by the society. Society as or the businesses generally, the all businessmen accepted this, has been accepted this concept, profit through services. They provide the all services, है ना, but keep the this thing in the mind कि the first is the responsibility towards the society, है ना, after that they gain the profit. Hope you like this video.
So please subscribe the channel and download the PDF given in description. Thank you.